వెల్కమ్ టు చాణిక్య న్యూస్. పాలమూరు జిల్లా కేంద్రంలో మిథున్ రెడ్డి నివాసంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ మాట్లాడుతూ బీఆర్ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలో సక్రమంగా అమలు చేయకపోవడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అదేవిధంగా నీళ్లు నిధుల నియామకాలలో అక్రమాలు జరిగాయని ఈసారి ఖచ్చితంగా బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంపీ జితేందర్ రెడ్డి, బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ, జిల్లా అధ్యక్షులు వీర బ్రహ్మచారి, బీజేపీ నాయకురాలు పద్మజారెడ్డి తదితర బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఓకేనా రెడీ? అందరికీ నమస్కారం. రేపు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు పాలమూరుకు వస్తున్నారు. వారు ఉదయం 10 గంటలకు మన ప్రాంతంలోకి వచ్చేసి 11 గంటలకు వారి యొక్క ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాము దాదాపు 1 గంటల వరకు నడుస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క యోగి అభిమానులు, ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ అభిమానులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అదే రకంగా 27వ తారీఖు నాడు కూడా మనకు రాజా సింగ్ గారు ఈ యొక్క మన మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు వస్తున్నారు. మహబూబ్నగర్ ప్రాంతం లోపల వారు 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి క్లాక్ టవర్ వరకు పెద్ద రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నాం. రోడ్ షో అనంతరం ఇక క్లాక్ టవర్ దగ్గర ఒక పెద్ద కార్నర్ మీటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి పత్రికా విలేకరులు కానీ అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీరు రావాలి. అదే రకంగా ప్రజలు కూడా రాజా సింగ్ అభిమానులు, హిందూ అభిమానులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలని. రేపు మటుకు యోగి గారి ప్రోగ్రాము 10 గంటలకే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి గతంలో కూడా మేము చెప్పినాము, ఈ యొక్క యోగి గారి కార్యక్రమంలో మీరు ఖచ్చితంగా వారి యొక్క ప్రోగ్రాం అనేటువంటిది మనకు అక్కడ నుంచి హెలిప్యాడ్ ఎంబీఎస్ డిగ్రీ కాలేజీలో ఉంటుంది. వారి యొక్క బహిరంగ సభ బాయ్స్ జూనియర్ కాలేజీలో నిర్వహిస్తున్నాం. కాబట్టి అందరూ కూడా మీరు కూడా ఖచ్చితంగా 10 గంటల ప్రాంతంలో మీరు రావాలని ఈ సందర్భంగా మీకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్తే. निरंतर काम करती रहेगी और तेलंगाना की जनता को न्याय मिले, वो न्याय आर्थिक रूप से मिले, वो न्याय विकास के रूप में मिले, वो न्याय यहाँ के लोगों को जिनको पीछे फेंका गया, कुचला गया, उनको आगे लाकर मिले. ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है. Sir, this election, how many seats are going to win? थम्पिंग मेजॉरिटी. Thumping majority? हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है. हम भी जीतने के लिए उतरे हैं. 119 उम्मीदवार लेके उतरे हैं और 119 के 19 उम्मीदवार हमारे पूरी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता में जा रहे हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद दे रही है. जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है. ये तो 1 साल पहले ही तय हो गया था. अब जनता किसको सत्ता दे तो उसको दिखता है कि कौन, किसके पास एक नेता है, किसके पास एक विज़न है, किसके पास देश चलाने का विज़न है, कौन देश पे बैठा है. उसी के हाथ में तेलंगाना दिया जा सके ताकि डबल इंजन से तेलंगाना आगे बढ़ सके. धन्यवाद आप सबका. आप सब आए और मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं चलती थी, 10 जनपद से चलती थी. आज तेलंगाना में पिछले 9 वर्षों में सरकार मुख्यमंत्री के ऑफिस से नहीं 7 स्टार फार्म हाउस से चलती. निर्णय मंत्री नहीं करते थे, कुटुंब करता है. ये स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक है. तेलंगाना की जनता इसके लिए मुक्ति का मार्ग ढूंढा है और भारतीय जनता पार्टी अहंकार की राजनीति, कुटुंब की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, अहंकार की राजनीति को तेलंगाना को इससे मुक्ति दिलाएगी. और 30 नवंबर के बाद जब 3 का परिणाम आएगा, 3 दिसंबर में, तो भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी नेता, ओबीसी विधायक, हमारा एक ओबीसी कार्यकर्ता, तेलंगाना का ओबीसी बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना
हमने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो बनने वाला तेलंगाना निश्चित रूप से बनेगा। सर आप लोग केसीआर फैमिली के बारे में बोल रहे हैं और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी था, बट उस फैमिली को थोड़ा सा केसेस है कुछ भी उसको कौन कैसे अबाउट कविता इश्यूज में आप लोग कोई नहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसा है कि एक्शन आपका लोग भी अब पार्टी से बाहर आ गए। एक्शन नहीं लेने वाली बात गलत है। चुनावी जो देश की कानून व्यवस्था है, कानून का जो सिस्टम है उसने काम शुरू किया है, कानून अपना काम कर रहा है। हम उनमें से नहीं है कि द्वेषपूर्ण जानबूझकर किसी के ऊपर आरोप लगाए और उसको गिरफ्तार करें। आरोप लगाने वाले भी चश्मदीद हैं, उनके साथ घूमने वाले लोग हैं, उसी के आधार पर सिसोदिया साहब अंदर गए हैं, उसी केस की जांच आगे बढ़ी है। कानून अपना काम कर रहा है और निश्चित रूप से जिन्होंने भी गरीबों का धन खाया है, शराब की माया खाई है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम करेगा। तेलंगाना में आईटी राइट्स चल रहे हैं, आपके बैकग्राउंड पूरा बीजेपी कर रहे थे, कांग्रेस को कौन राइट चल रहे? आईटी राइट्स विवेक के ऊपर में ऐसा है कि बिल्कुल गलत है। अगर వచ్చింది కదా ఇటుకెళ్ళి బయలుదేరుతాం हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बहन डी के अरुणा जी, पार्टी के सीनियर लीडर जितेंद्र जी, यहाँ हमारे पार्टी के सीनियर सभी आज्ञावान और आप सभी प्रेस के मित्रों से मैं सर्वप्रथम देरी होने की माफ़ी मांगता हूँ। आप भी देख रहे होंगे मौसम बदल रहा है। ये मौसम राजनीतिक मौसम भी बदल रहा है। अहंकार, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की सरकार अब जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रति वचनबद्ध पार्टी है, लेकिन दुर्भाग्य है देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे वरिष्ठ जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने लोकतंत्र में मालिक वोटर को बनाया, देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई है कि कुटुंब मालिक बन गए। पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं वो अब सत्ता चाहते हैं। पूरी तरह केसीआर की सरकार भ्रष्टाचार पर, उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि तेलंगाना का व्यापारी हो, तेलंगाना का किसान हो, तेलंगाना का नौजवान हो, तेलंगाना का मजदूर वर्ग हो, एससी वर्ग हो,
ओबीसी हो, हर वर्ग बदलाव चाहता है और उन्हें बदलाव में केवल व केवल भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह बीआरएस का कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसी तरह कांग्रेस का कुटुंब का पूरा कुटुंब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई जमानत पर है, कोई आपराधिक केस के अंदर फंसा है। पूरी की पूरी दोनों पार्टियां लोकतंत्र की बजाय लूट तंत्र पर काम कर रही है। जनता 30 नवंबर को करारा जवाब देगी और तेलंगाना को भ्रष्टाचारियों से, अहंकारियों से, तानाशाहियों से मुक्ति दिलाए। ये सब इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। और ये जो नेता छोड़ के गए, वो किसी कारण जो मर्जी बताएं, लेकिन सच ये है, जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा, तब इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। और ये हमारी कमिटमेंट है कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, बंगारू तेलंगाना बनाएंगे। तेलंगाना में अभी भी सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र से पिछले 9.5 वर्षों में आया है, लगभग 100 गुना ज़्यादा। हमारी केंद्र की सरकार ने पिछली बार से 100 गुना ज़्यादा। उस समय जब केसीआर साहब भी केंद्र में मंत्री थे, तब भी इतना पैसा यहाँ नहीं आया था जितना पैसा पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पहुँचाया है, और ये आगे भी जारी रहेगा। तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हर समय वचनबद्ध है, और अब डबल इंजन की सरकार यहाँ बनेगी। नीचे भी मुख्यमंत्री भाजपा का और ऊपर भी प्रधानमंत्री भाजपा का, दोनों मिलकर यहाँ के विकास को एक नई दिशा दें। रेवंत रेड्डी बोल रहे आप बीजेपी और बीआरएस एक ही है। क्या, कौन बोल रहे? रेवंत रेड्डी ऐसा है कि रेवंत रेड्डी जी कौन है ये सब जानते हैं, और अगर आज भी बीआरएस की सरकार के विधायकों की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हैं जो पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे। 14 वाले भी कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो बेंचेस उन्होंने बीआरएस के में बैठे थे, बीआरएस के बेंचेस पे बैठे थे। और आज भी दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये नूरा कुश्ती अब जनता समझ चुकी है कि 14 का परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस कहाँ थी, 18 का परिणाम आने के बाद भी कांग्रेस कहाँ थी, और 14 से पहले भी केसीआर साहब किस गठजोड़ में थे, जनता जानती है। Initially, we heard in Telangana all political leaders are going to contest assembly elections, but this time many seniors are not contesting. Many seniors are not involved in assembly elections. They are not contesting. Why? आप बताइए कौन? हमारे तो सभी सीनियर लड़ रहे हैं। आप देखिए, सन्नी बंडी जी इलेक्शन लड़ रहे, इटला राजेंद्र इलेक्शन लड़ रहे, सभी सीनियर इलेक्शन लड़ रहे, अरविंद धर्मपुरी इलेक्शन लड़ रहे, राव साहब हैदराबाद से इलेक्शन लड़ रहे। हमारे तो सभी सीनियर इलेक्शन लड़ रहे। और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पार्टी कहती है वो चुनाव लड़ता है और बाकी चुनाव लड़ाने में सहयोग करते हैं। यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ ध्येय इंपॉर्टेंट है।